हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज पावर शेयरिंग, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिविक्स। एंड इन दिस चैप्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पावर शेयरिंग एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। तो इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप द पावर शेयरिंग is important that we are going to understand in this chapter. And if any democratic country ignores this concept of power sharing, then what are the results, what are the consequences, that we will also understand through the examples given in your NCERT. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर पावर शेयरिंग, और पहला जो हेडिंग है पावर शेयरिंग वही आपको समझाता है कि व्हाट इज पावर शेयरिंग. First thing, sharing. Sharing will always take place when two or more than two parties are there. जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज और इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट्स हैं तभी हम शेयरिंग की बात कर सकते हैं. और क्योंकि हम शेयरिंग ऑफ पावर वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हम क्या देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, एक डेमोक्रेसी में जिनमें हम गवर्नमेंट बाय द कंसेंट इलेक्ट करते हैं, उसमें ये कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को फॉलो करता है या फिर नहीं करता है, और अगर नहीं करता है तो उसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं. तो आपका जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं पे आपको बिल्कुल with the very beginning of the first page of this chapter, we have been given the first example of a country named Belgium and the another one is the example of Sri Lanka. और ये दोनों कंट्रीज के एग्जाम्पल्स आपको इस कंसेप्ट को समझने में, इसकी इंपॉर्टेंस को समझने में हेल्प करेंगे. तो here we start. Now we have the country. First example have been given to us is of Belgium. So Belgium is a small country of Europe. Size has been given to you in your book कि the size of geographical area or geographical size of this country is almost equal to Haryana, and the population of this country is about 1 crore. 1 crore people. और अगर हम थोड़ा सा और प्रिसाइज करें तो 1.1 crore. That is the total population. 11 million people are living in Belgium. This is the first statement given to you, and then what they are describing in Belgium there are three main important ethnic groups living. Three ethnic groups. Ethnic group means कि तीन तरह की communities Belgium में रह रही हैं mainly, and in Belgium the differences between the people is on the basis of their language they speak. The language they speak, that creates a difference in that small country. In Belgium there are three language group people. One is the Dutch speaking people, second one is the French speaking community people, and third one is the German speaking people. तो बेल्जियम में तीन तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के तीन एथनिक ग्रुप्स हैं. डच स्पीकिंग पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट देयर परसेंटेज इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. तो अगर हम बात करें आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम, 59% of the people are the Dutch speaking people. That means कि they are 59% of the population is speaking Dutch language. 40% of the population is speaking the French language, और F.S. का मतलब French speaking community people. तो 40% are French speaking community people and 1% are German speaking people. Now we will move to the next part. In this country Belgium, where these people are living. So if we just see the map of Belgium, this is the roughly map of Belgium. What we are going to find out, there are two major regions in Belgium. This one is the first region and this one is the second region, this. So what we find, name of these two regions are, one is known as Flemish region और फ्लैंडर्स दे आर नोन एज, एंड सेकंड वन इज वलोनिया. तो मैं कह रहा हूं आपको कि दो बड़े एरिया हैं बेल्जियम के अंदर. वन इज कॉल्ड फ्लैमिश, अनदर वन इज कॉल्ड वलोनिया. तो फ्लैमिश एंड वलोनिया, दीज आर द टू मेजर रीजन. सो वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द डच स्पीकिंग पीपल दे आर लिविंग इन फ्लैमिश रीजन,
and most of the French speaking people, they are living in the Wallonia region. So upper northern part is the Flemish region where Dutch people are living, and lower region is known as Wallonia region where the French speaking community is living. क्लियर? और उसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझ आएगा कि इस नीचे पार्ट पर ये जो आपको कंट्री नजर आता है इस वलोनिया रीजन के साथ, दैट इज फ्रांस, और ये अपर पार्ट पे जो आपको कंट्री नजर आएगा दैट इज नीदरलैंड और डचलैंड. तो नीदरलैंड के नजदीक जो एरिया जुड़ता है नेचुरली वहां पे उस लैंग्वेज को बोलने वाले ज्यादा हैं. तो फ्लेमिश रीजन में डच स्पीकिंग कम्युनिटी इज लिविंग, एंड द एरिया ऑफ वलोनिया विच इज हैज अ बॉर्डर विद फ्रांस. In that area, majority of the people are speaking the French language. Clear? And 1% people are speaking the German language, and that is living in this particular area. और यहाँ पे जो country जुड़ता है वो है आपका जर्मनी. Clear? तो हमें एरिया वाइज भी समझ आ गया कि कौन कहाँ रह रहा है. लेकिन अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहां सर्कल डाल रहा हूं, जीरो बना रहा हूं छोटा सा, अगर आप इसे देख सकें तो ये है कंट्री की कैपिटल, दैट इज ब्रसल्स. सो ब्रसल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ यूरोप, दैट इज ब्रसल्स. इन कैपिटल द पॉपुलेशन इज बायलिंगुअल. बाय का मतलब डबल, बायलिंगुअल, दो लैंग्वेज बोलने वाली है. दैट सिंपली मीन्स बोथ लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटीज डच एंड फ्रेंच, they are living in the capital Brussels. Clear? और एक और चीज आपको ये समझना है कि in Brussels the majority of the people are speaking French language. तो आप देखें in capital Brussels 80% people are speaking the French language, whereas in 20% of the Dutch speaking people belongs to the capital Brussels. तो अब हमें क्या समझ आया कि the majority speaking community, that is the Dutch speaking community, which is 59% of the population, that is in majority in the entire country as far as their number is concerned, but they are relatively belongs to minority if we talk about capital. तो जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग पूरे देश में मेजॉरिटी में है, वो कैपिटल के अंदर उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 20% है, और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी पीपल जो देश में कंपैरेटिवली टू डच स्पीकिंग कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, क्योंकि उनका परसेंट 40% है पूरी कंट्री में, लेकिन वो कैपिटल के अंदर दे आर एंजॉयिंग अ ह्यूज मेजॉरिटी. सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बेल्जियम. ठीक, ये I hope you understood the ethnic composition, and this would become your question number 1. Describe the ethnic composition of Belgium. Now we will find out the dispute which was there between the two communities, Dutch speaking and the French speaking community, during the time period of 1950s and 60s. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब दोनों कम्युनिटीज के बीच में, डच और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच में डिस्प्यूट जो है वो होने शुरू हुए. दैट स्टार्टेड इन 1950s एंड 60s. एंड व्हाट वर द रीजन ऑफ डिस्प्यूट? तो आपने रीजन ऑफ डिस्प्यूट बताने हैं कि इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में डिस्प्यूट की वजह क्या बनी. तो पहला रीजन है आपका, और ये बहुत नेचुरल है ह्यूमन बीइंग्स के साथ, कि जो डच कम्युनिटी पीपल हैं, they felt that they were in majority, they were almost 60% of the population. तो अगर वो मेजॉरिटी में है तो उनका डोमिनेंस होना चाहिए, उनका दबदबा होना चाहिए. तो दिस इज योर फर्स्ट रीजन ऑफ डिस्प्यूट कि द डच स्पीकिंग कम्युनिटी पीपल वांटेड देयर डोमिनेशन ऑन द अदर कम्युनिटीज, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेजॉरिटी. और जब वो अपना दबदबा चाहते हैं तो नेचुरली दूसरी जो कम्युनिटीज हैं वो इसको प्रोटेस्ट करेंगी. तो दिस इज फर्स्ट रीजन. सेकंड रीजन दैट वाज कि द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी पीपल, दे वर मोर रिच एंड प्रोस्पेरस, दे वर मोर एजुकेटेड, and they were enjoying the much higher position in the administration, in the governments, as compared to the majority Dutch community people. तो डच के लिए जेलेसी इसलिए भी ज्यादा थी कि although they were in majority, but the French speaking community people were more prosperous as compared to them. They were more educated, and as well as they were enjoying the higher positions in the different departments of the government.
as compared to Dutch speaking community people. क्लियर? तो दिस इज द सेकेंड रीजन. और आप चाहें तो अपनी तरफ से एक तीसरा रीजन और ऐड कर सकते हैं. मैं इसे यहां लिखता हूं. वो तीसरा रीजन आप बता सकते हैं कि कैपिटल, इन द कैपिटल, एंड कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रसल्स. सो इन कैपिटल who was in majority? The capital, which is the most important city, the French speaking community, French speaking people were in majority. So this can be your third reason, were enjoying the huge majority. तो ये हमने अब दो टॉपिक्स को कर लिया है, ethnic composition of Belgium and the reasons of dispute between the two communities. Now we are going to move to the next part, and the next part is related to your another country, that is Sri Lanka. So Sri Lanka, like Belgium, is a small country, small size country. Similarly, Sri Lanka is also a small size country. Belgium is in Europe, but Sri Lanka is in Asia, and but more particularly in South Asia. ठीक है, फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कोस्टल बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु. हमें पता है कि ये इंडिया का कोस्टल बॉर्डर, यहां हमारे पास तमिलनाडु स्टेट हो गया और इसके साथ जुड़ता हुआ ये आपका हो गया श्रीलंका. तो फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु. एंड नाउ दिस पॉपुलेशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज अबाउट 2 करोड़. इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ थी और श्रीलंका की पॉपुलेशन इज अबाउट ऑफ 2 करोड़. क्लियर? अब इस 2 करोड़ की कम्युनिटी में हम एक और चीज समझेंगे कि श्रीलंका में जो डाइवर्सिटी है, जो अलग एथनिसिटी वाले लोग हैं, अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं, वो दो बेसिस पे हैं. इन बेल्जियम देयर वाज ओनली वन बेस, दैट वाज लैंग्वेज. कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज 3 मेजर कम्युनिटीज वर देयर. इन श्रीलंका these differences are based on 2 grounds. One is language and second one is religion. Clear? तो लैंग्वेज बेसिस पे भी ग्रुप है और रिलीजन बेसिस पे भी ग्रुप है. अब हम उसे फाइंड आउट करते हैं कैसे है वो ग्रुप. सो आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, 74% people are speaking the Sinhala's language. They are speaking Sinhala language, or they are Sinhala speaking people. And 18% people are speaking the Tamil language. So 2 major groups are there. 74% people speaking Sinhala language and 18% people are speaking the Tamil language. अब इस तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी को भी हम 2 फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. These Tamil speaking community people could be divided furtherly in 2 groups. One is called Sri Lankan Tamils, जो शुरू से ही श्रीलंका में रह रहे हैं, जो शुरू से ही श्रीलंका के एथनिसिटी का पार्ट है. they were known as Sri Lankan Tamils. तो their population percentage is 13% and 5% are the Indian Tamils. अब तमिल से आपको अपना तमिलनाडु भी एकदम याद आता है. तो इंडियन तमिल्स कौन है जो श्रीलंका में पहुंच गए और श्रीलंका की पॉपुलेशन का उन्होंने 5% बना लिया. तो ये कौन है इंडियन तमिल्स? तो आपको पता लगेगा ये वो तमिल लोग हैं जिनको ब्रिटिशर्स कभी आज से 1 या 2 सेंचुरी पहले, 100-200 साल पहले तमिलनाडु से श्रीलंका ले गए. क्यों ले गए? क्योंकि they wanted to develop the tea plantation areas in Sri Lanka, and in these tea plantation areas they required the labor, and this labor was transported from Tamil Nadu to Sri Lanka. तो ये हैं इंडियन तमिल्स जो अब श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन का 5% के करीब ऑक्यूपाई करते हैं. तो हमारे पास अब तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी के 2 ग्रुप्स हो गए हैं, श्रीलंकन तमिल्स विच आर ऑल्सो नोन एज नेटिव तमिल्स, 13% एंड 5% इंडियन तमिल्स. तो अब हमने लैंग्वेज बेसिस पे 2 बड़े ग्रुप देख लिए हैं. अब अगला चीज जो मैं आपको रिलीजन बता रहा था, उसमें आप देखेंगे कि जो सिंहला स्पीकिंग कम्युनिटी के लोग हैं, मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग कम्युनिटी पीपल, दे आर फॉलोइंग बुद्धिज्म, दे आर बुद्धिस्ट बाय रिलीजन. तो अधिकतर सिंहलास जो हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी इज ईदर फॉलोइंग हिंदुइज्म और इस्लाम. तो अब हमने क्या देखा कि जो एथनिक ग्रुप्स हैं
वो लैंग्वेज बेस पे भी डिफरेंट है श्रीलंका में, और साथ ही साथ उनमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है रिलीजन का, कि उनके रिलीजन भी डिफरेंट है। अब 74 और 18 के बाद जो तीसरी बड़ी कम्युनिटी है रिलीजन बेस पे, दैट इज ऑफ क्रिश्चियंस। 7% ऑफ द पॉपुलेशन इज अबाउट बिलोंग्स टू क्रिश्चियनिटी, एंड they speak either Sinhala language or Tamil language. If these 7% Christians, they are living in the Sinhala dominating area, then naturally they are speaking Sinhala language. Or if they are living in the Tamil dominating area, so they are speaking the Tamil language. तो आपको एक और चीज मैं बताना भूल गया हूं, यहां मेंशन नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं, वो है कि most of the Tamil speaking people are living in the northern and eastern part of Sri Lanka. So this one is north, this one is south, this one is east, this one is west of Sri Lanka. तो अधिकतर आप श्रीलंका तमिल पीपल को देखेंगे वो या तो नॉर्थ में रह रहे हैं या फिर ईस्टर्न पार्ट में रह रहे हैं, इस पोर्शन में। ये आपको अपनी बुक की मैप में भी नजर आएगा। So most of the Tamil speaking people are living in the northern and eastern part of Sri Lanka, and rest of the portion, the Sinhala speaking people are in majority. So I hope you understood the ethnic composition of Sri Lanka. This is your topic number 3.